response. The impulse response means the h of t will be 0 for t less than 0. A LTI system has to be causal. The impulse response will be 0 for t less than 0, and this is not equals to 0 for t greater than equals to 0. And if you want to introduce this thing, causality in LTI system, so how the mathematical expression of the output will be modified. We have the mathematical expression for the output initially, that h of y of t is equals to minus infinite to infinite x of tau h of t minus tau d tau. Or you can say that y of t is nothing but this is convolution of xt and ht. So in order to have a causal system, how the limits of this thing is going to be changed, because causality means the impulse response is not equals to 0 for t greater than equals to 0. But here, since I am using h of t minus tau, which is not equals to 0 for t minus tau greater than 0, or you can say the t is greater than tau, or you can say the tau is less than t. So since we are putting the limits of tau, so this mathematical equation will be modified by of t equals to minus infinite to t x of tau h of t minus tau d tau. The original equation of the output of a LTI system is modified in accordance to the causality of the system. And we know one more thing, that the convolution is a commutative. So either you can use x of tau convolute with, or I mean xt convolution with ht, or ht convolution with xt. So if I take the h of tau initially and x of t minus tau, so that means for a causal system h of tau is not equals to 0, tau greater than 0. Excuse me, sir, you are not audible, sir. It is written on hold. Hello. Yes, sir. Unfortunately, Yes, sir. I had a call. No issue. Okay. So the screen is visible or not? Visible, sir. Okay, fine. Yes, sir, visible. Okay. So if you take h of tau initially and x of t minus tau, then since we want to implement the condition of causality, so h of tau is not equals to 0 for tau greater than 0. So now this equation modifies, because we are putting the limit of tau that has to be greater than 0. So equation modifies that by of t equals to 0 to infinite h of tau x of t minus tau d tau. Right. Now, if we have one more thing that you want to include in the equation, if the signal is causal, if the signal is causal itself, the signal is causal itself means x of t is 0 for t less than Sir, 0. Yes. before that, why from 0 to infinity? Why not from minus infinity to 0? Yes, yes. Hello. Yes, sir. Sir, can you hear me? Yeah, yeah. Sir, I'm asking, when you change the limit, you put it from 0 to infinity. Why not from Yeah. in minus infinity to 0, sir?
because we are putting the limit of tau, and h of tau is 0 for minus infinity to, Oh, it should be greater than 0. Fine, sir, fine. yeah, because of h of tau. Yes, We sir. are including the condition of causality. So if the signal is itself is causal, that means xt is 0 for t less than 0. So the equation modifies like this. The original equation is minus infinite to infinite x of tau h of t minus tau. And for x of tau, I'm taking this condition, so tau greater than 0. If you are taking h of tau, this, so finally your limits will Sir, be there you 0. have written t greater than less than 0. Where? If the signal is causal, Yeah, then x of t is equal to 0 for t less than 0. t less than 0. That means we need to consider which condition, because x of t is now replaced by x of tau. So if this is 0 for t less than 0, that means x of tau is not equals to 0 for tau greater than 0. Same thing. Yes, yes. So your equation finally modifies that y of t is 0 to t, x of tau, h of t minus tau, or that is equals to 0 to t, h of tau, x of t minus tau deta. This is the condition where both the system and the signal is self causal. But if you talk about the system is causal, this is the condition. This is the condition when we are taking h of tau here, and this is the condition when we are taking h of t minus tau. So hardly matters, because the result will remain same. Here this is integrating from minus infinity to t, and here we are integrating from 0 to infinity. Just need to understand the concept that how you can introduce the causality with LTI system, right? This is the main condition that you need to remember always, that h of t is not equals to 0 for tau greater than equals to 0. So this is how you can make a LTI system causal. Now, one more thing, or one more important property of a system is stability. So as I already discussed about a system stability, so system stable means here we are talking about BIBO stable. BIBO stable means bounded input and bounded input. I already told about the bounded input. Bounded input means reasonable input. Reasonable input means the magnitude of the input must be a finite value. Then what we are expecting with the system must give you the reasonable output. That means the output must be a finite value, right? Only then you can say the system is BIBO system. All the practical systems that we are making to perform properly, so we expect that the system has to be a BIBO stable. The reason being, if you give the reasonable input to any system and you are expecting the reasonable output, of course, this is a practical case. Suppose if you are talking somebody with a polite manner, what do you expect? You expect that somebody others should also talk in a polite manner. But this is not always necessary, right? As the human being. But for a part of system, whatever the system you are going to make or manufacture, this is our expectation that your system must be a BIBO stable. So if I put the condition of BIBO stable to the LTI system, then how you can achieve that? See this condition. So mod of xt is less than equals to k1. So of course, this we are expecting some finite value, and y of t we are again expecting some finite value. The mathematical expression for y of t is what? This is minus infinite to infinite h of tau x of t minus tau. Or in other way, you can write x of tau h of t minus tau, hardly matters. If you take the magnitude both side, right? So the same equation can be written as y of tau, this mod of h of tau less than equals to minus infinite to infinite mod of h of tau and mod of x of t minus tau dt. So let's say I'm putting k2 over here for the magnitude of x of t minus tau. Of course, x of t is finite, so the shifted version is also having some finite value. So let's say this is k1. So
Mathematically, if I want to replace this k2 by k1 by some other constant, that is k3, so our equation becomes minus infinite to infinite mod of h of tau d tau. So that means this integration is absolutely integrable. Now, what is the meaning of this mathematical Sir, equation? Yes. this expression should be greater than K3, I think. Y greater than K3? Sir, what is K3? K2 by K1 or something else? Yeah, is K2 by K1. Then, sir, it should be greater than. Sir, as there is written K2 is less than K1 into that something. See, K2 by K1. Yes, sir. K2 by K1 is what? Less than No, integration. no. K2 by K1 is again a What's it? Constant? constant, Yes, sir. right? And K2 by K1 mathematically, just wait a minute. I'll check this equation. Y of t is minus infinite to infinite this, and we are taking the mod of this. See this equation, y of t is less than or equal to K2. Yes, sir. So that means we are putting some finite value over here. Yes. So in order to have this y of t finite, because since I have taken a sign of equality over here, and if you take the mod of this, mod of yt, initially we are taking yt equals to minus infinite to infinite h of tau x of t minus tau d tau. If you take the mod of this, so I think there is a theorem that the mod, if you take the mod of a quantity and if it is represented by the product of two modes, then Then the that product quantity, of two mods will be greater than the overall product of overall mod of those products. overall mode of Those products. those products. Yes, sir. Can you give some example? Like, sir, mod of x1 into mod of x2 is greater than mod of x1 x2. Let's say we are taking 2 5, right? Mod of 2 and mod of 5 is always greater than mod of 10. Is it so? So greater than or equal to it will be. Greater than equal to will be there, but yeah, it will be same. If it is a greater than or equal to this, that means it is leading to some infinite value. It can lead, sir. But what you require? You require that it is absolutely integrable. Absolutely integrable means the integration must be a finite value. Yes, sir. Where we are missing something.
mod of y of t is minus infinite to this. If somebody is having the clarification of this, please try, because mod of yt is this, mod of this is fine. Firstly, sir, you have written kt minus tau, mod of kt minus tau as k1. But in the initial case, you have written x of t less than k1. Does it matter, sir? See, if I write this equation in this way, minus infinite to infinite, mod of h of tau, mod of x of t minus tau d tau equals to mod of yt. Okay. 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 And this quantity is some finite value, this quantity is some finite value, and the ratio. I think in this equation, something is wrong where I am putting my cursor, because this is minus infinite to infinite mod of h of tau, mod of x minus tau, d tau. Let's say this is equals to mod of y of t. And that mod of y of t is what? This is some constant, right? Yes, This sir. is some constant. And mod of x of tau is again a constant, right? Yes, sir. Mod of x of tau is a constant, but t minus tau, is it a constant? Yeah, it will be a constant because this is nothing but this is the shifted version. We are Okay, not yes. changing the magnitude of that. Yes, yes. We are not It is changing the also magnitude. So this is constant. So true. this constant has got some finite value, right? Means the product of these two has got some finite value, and this is again a finite value. So this will be a finite value. Somewhere this is less than equals to, I think this is written wrong way. If I write No, sir. y of It t is on the not right wrong. hand side, Yt on the right hand side, then also, sir, integration minus infinity to infinity ht dt will be greater. greater of what? Greater of, sir, like ht dt, mod of ht dt into mod of x t minus tau dt will be greater than Hey, individual that is mods. fine. That is fine. But since which is greater than yt, that is okay. But yt is what? Yt has got some finite value, Yes, sir. and mod of xt is again a finite value. That is also true. And the ratio of these two finite value will give you what? Again, a finite value. Again a finite value, right? The ratio of these two finite value will always give you a finite value. There might be something wrong with the putting of these signs. But mathematically, if I say the y of t or the mod of y of t is a finite value, that is 100% true. Mod of x of t minus tau is a finite value. This is also true. And the ratio of these two finite value will also true. So that means the integration of minus infinite to infinite h of tau d tau will again a finite value. This is what I want to say. Okay. Maybe this putting of this sign, I'll check this equation. Okay. Next day I'll tell you about this how to put this equation. But try to understand the meaning of this. What I want to say, the magnitude of input is a finite, the magnitude of output is a finite, and the ratio of these two finite values will give you a finite value. So that means this
mod of h of tau must be a finite value. That means the impulse response of a system must be absolutely integrable. This is what I want to say. Okay. Mathematically, I'll check it out, this equation, and tomorrow I'll tell you where we are missing and what we are missing. Okay, for a moment, we just understand that the ratio of these two finite values are finite, and this mod of h of tau must be a absolutely integrable. Okay, is it okay? Okay, sir. Okay. So absolutely integral means whenever you integrate this, the mod of h of tau, that is the impulse response, that should give you a finite value. The next type of system is an invertible system. So we already discussed about invertible system. If we introduce LTI system with invertibility, so LTI system is said to be invertible if the system exists that when connected in series with the original system produces an output equal to the input to the first system. इन्वर्टिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, कोई बताएगा? What about a invertible system? Input from the output signal. Yes. We will be able to recover input from the output, right? And और एक क्या कंडीशन थी? Your system will provide distinct output for Distinct input. distinct input. ये कंडीशन थी. बट यहां पर हम लोग इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करेंगे LTI सिस्टम के लिए? तो ये बोला गया है LTI system is said to be invertible if a system exists. For example, let's say हम बोल रहे हैं कि HT हमारा एक invertible system है, ठीक है? If a system is exist when connected in series with the original system. Original system क्या है? HT है, उसके साथ एक और system connect किया गया है, let's say H1T, produces the output equal to the input to the first system, right? A system invertible कब होगा? जब इसके साथ एक और system connect किया जाए in such a way that the output, जो output y of t है, after the series connection of this HT and H1T will give you the same input, right? Then this is said to be a invertible. अगर मुझे same output चाहिए, कितने लोग बताएंगे what should be the condition? Input xt दिया है, output by t भी हमारा यही आएगा. This is the original system is connected with the H1T. Then this system is known as the invertible system. Yes. एक बार फिर से कंडीशन बता देंगे एक बार. कंडीशन ये है, LTI system is said to be invertible if a system exists that when connected in series with the original system, this is the original system h of t जिसका impulse response h of t है, this is connected in other system in series whose impulse response is h1t, and this is connected in series in such a way that the output of the system, output क्या है? x of t is equal to the input of the system. Yani y of t will be equals to x of t. Under what condition? Because since these two are connected in series, अगर दो LTI system series में connected है तो उनका overall response क्या होता है? सर दोनों का आउटपुट का सम हो जाता है ना? नहीं. The convolution of very nice. The overall convolution इसका कितना हो जाएगा? सर x t h फिर x t convolution of HT और H1T की इनके ओवरऑल कन्वोल्यूशन को क्या बोलोगे आप? HT कन्वॉल्व विथ H1T, ठीक है? तो अब आपको क्या चाहिए है? आउटपुट YT इसी के इक्वल चाहिए XT के. तो क्या कंडीशन होनी चाहिए तब ये पॉसिबल होगा? सर तीनों का कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट जो होगा वो XT के इक्वल कर देंगे. हाँ, बट वो कब होगा? अंडर व्हाट कंडीशन?
xt convolve with ht convolve with h1t must be equals to xt. But under Yes, what sir. condition? नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं आ रहा. अच्छा लिख के देखो, पेपर पे लिखो जरा. Sir, maybe मे भी क्या? हम किसी भी सिग्नल को किसके साथ कन्वॉल्व करें कि वही सिग्नल मिल जाए? u of t. नहीं, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ध्यान दो जरा. sir, impulse function. इम्पल्स फंक्शन के साथ. इम्पल्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी चेक करो. याद है मैंने बताया था, एनी फंक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स. Impulse. बताया था, ये Sir. सभी को याद आ रहा है? यस सर. इसका मतलब है इम्पल्स के साथ अगर उसका कन्वॉल्व कर दोगे आप, तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है किस किस का कन्वोल्यूशन हमें इम्पल्स चाहिए. H1T और HT का. That means we require a condition that ht convolve with h1t must be equals to delta t, क्योंकि डेल्टा टी का xt के साथ जैसे ही कन्वोल्यूशन करेंगे हमें फिर से xt मिल जाएगा. तो दिस इज द कंडीशन. Yes, sir. ht convolve with h1t must be equals to delta t. ये कंडीशन होगी हमारी किस चीज के लिए? एक इन्वर्टेबल सिस्टम के लिए. Invertible. ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन आपको बताना है ये. अगर yt हमारा ये है x ऑफ t माइनस टी नॉट, ठीक है, और ये हमारा xt है, तो इसको किसके साथ कन्वॉल्व करना पड़ेगा? सिंपल एक क्वेरी है बस, क्वेश्चन कुछ नहीं. xt को हम किसके साथ कन्वॉल्व करें कि x ऑफ t माइनस टी नॉट मिल जाए? सर डेल्टा T माइनस T नॉट के साथ. डेल्टा t माइनस टी नॉट. ठीक है, ये भी एक सिंपली वही चीज है. अगर xt चाहिए तो आप करेंगे डेल्टा t के साथ, और शिफ्टेड वर्जन चाहिए तो डेल्टा t का शिफ्टेड वर्जन के साथ. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या है. जो इन्वर्टेबल सिस्टम है, ठीक है, इन्वर्टेबल सिस्टम में अगर हमारा ht जो है वो डेल्टा t माइनस टी नॉट है, और h1t हमारा है डेल्टा t प्लस टी नॉट, इन दोनों का कन्वोल्यूशन क्या आएगा? कन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा t माइनस टी नॉट विथ डेल्टा t प्लस टी नॉट. सर वो डेल्टा टी माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट हो जाएगा. डेल्टा t माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट. फाइनली कितना हो जाएगा? वो डेल्टा t तो हो जाएगा, डेल्टा टी. यस. डेल्टा t हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है. ठीक, यस सर. इस प्रॉपर्टी को याद रखना. ये प्रॉपर्टी आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कन्वोल्यूशन में. ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को. जो बता रहे हैं वही सेम एज इट इज है. एक आउटपुट है y ऑफ t विच इज अ कन्वोल्यूशन ऑफ xt एंड डेल्टा t. क्या मिलेगा? xt और डेल्टा t को कन्वॉल्व करेंगे तो XT. xt. ये क्लियर है सभी को? मैथमेटिकल इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है. ठीक है, ये आएगा x ऑफ टाउ डेल्टा t माइनस टाउ डी टाउ, एंड दिस इज सिंस डेल्टा t माइनस टाउ इज valid or having an impulse at t equals to tau. Now if I shift this by delta t minus t naught, अगला हमारा है xt convolve with delta t minus t naught. क्या मिला आपको? X of T minus T. x of t minus t naught with the same property. Now if I am convolving this xt with ut, what will be the change in the mathematical equation?
सर ये सभी जो लोग यूटी है वो तो हर जगह पे 1 होता है ना, क्या चीज? यूटी तो हर जगह पे 1 होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होगा उसका, ठीक है। तो व्हाट और अबाउट द लिमिट? डेल्टा टी था वो सिर्फ 0 पे था वैलिड। देखो इसको हम दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक हम यूटी कन्वॉल्व विद एक्सटी ले सकते हैं, एक एक्सटी कन्वॉल्व विद यूटी ले सकते हैं। तो दोनों में आप इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए कहाँ कहाँ चेंज होगी। सर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी जब यूटी होगा। यूटी होगा मतलब? आई मीन अगर यूटी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी करेंगे ना, हाँ, यू ऑफ टाउ बोलो उसको, यू ऑफ टी नहीं बोलो, ठीक है। सॉरी सर, यू ऑफ हाँ, टाउ करेंगे तब 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और वेरी अगर नाइस। यू ऑफ टी माइनस टाउ करेंगे, नहीं तब क्या टाउ होगा? माइनस टी, तो सर टी तब टू सर इन्फिनिटी हो नेगेटिव जाएगी। इन्फिनिटी से टी तक, माइनस इन्फिनिटी से टी तक। टी थीटा। तक सर। तो अगर हम लोग u ऑफ t माइनस टाउ ले रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू दिस, और अगर दूसरा वाला ले रहे हैं तो हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस केस में लिमिट क्या होगी ये सभी लोगों को बताना है। xt कन्वॉल्व विथ u t माइनस टी नॉट। कहाँ व्हाट लिखा है विल बी सर द क्वेश्चन? xt कन्वॉल्व विथ u t माइनस टी नॉट। ut को शिफ्ट कर दिया है। It will be from minus infinity ओके to सर, t तो minus t फर्स्ट naught. केस में तो सर टी नॉट टू इन्फिनिटी हो जाएगी। फर्स्ट केस में जब u ऑफ टी माइनस टी नॉट और टाउ माइनस टी नॉट और x ऑफ टाउ माइनस टी करेंगे तब, सॉरी टी माइनस टाउ करेंगे तब तो हो जाएगी टी नॉट टू इन्फिनिटी, और t दूसरे नॉट टू केस में हो इन्फिनिटी जाएगी, यस सर, टी नॉट टू इन्फिनिटी। 0 नहीं होगा? नहीं सर, टी नॉट है ना लिमिट, सॉरी यूटी के अंदर टी माइनस टी नॉट कर रखा है ना। ओके, मान लिया, चलो। t नॉट टू और इन्फिनिटी, दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में हो जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू टी नॉट प्लस टाउ, सॉरी टी नॉट प्लस टी, t नॉट प्लस t और t माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट, सॉरी। प्लस नहीं आएगा ना, वो जो शिफ्टिंग यहाँ हो रही है सेम शिफ्टिंग वहां होगी। यस सर। तो फाइनल इसका जो निकल के आता है कंक्लूजन है, ठीक है, उसको हम लोग बात करेंगे। अगर x ऑफ t हमारा h ऑफ t के साथ कन्वॉल्व हो रहा है और वहीं इनपुट में अगर t1 का शिफ्टिंग है, आउटपुट में t2 का शिफ्टिंग है, तो ओवरऑल बाई t में जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा t माइनस t1 माइनस t2। ठीक है, इससे आपको इन चीजों को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट द मैथमेटिक्स दैट इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस तो आपको मिल जाएगा। इस सवाल का आंसर आप लोग निकाल दीजिए। xt और ht दोनों ही ut हैं। व्हाट विल बी द कन्वोल्यूशन? इट विल बी इन्फिनिटी। ut और ht दोनों ही ut हैं। xt और ht बोथ आर ut। सर कुछ टी आएगा शायद टी। t आएगा या tut आएगा? पूरा करके देखो। ओके सर, ओके। ये आएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट u ऑफ टाउ, u of t minus tau d tau, right? And u of tau is valid for, सर टी आएगा सर इसका। ये सर इसमें आ टी आ जाएगा। रहा है सर। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी। t, सर 0 टू टी। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका t। तो जो वेवफॉर्म ड्रॉ होगा वो किस तरह से होगा? ये वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस, ठीक है, इन आफ्टर द कन्वोल्यूशन। अगर इन्हीं दोनों को शिफ्ट कर दूं मैं, ठीक है, ut को अगर शिफ्ट कर दूं अल्फा से ut प्लस अल्फा, और दूसरे ut को शिफ्ट कर दूं ut प्लस बीटा। आपको याद होगा मैंने आपको एक रैंप फंक्शन बताया था जिसमें tut को रिप्रेजेंट किया था किससे? rt से, याद है आपको?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स में बताया था मैंने, रैम फंक्शन। सर याद तो नहीं आ रहा, बट आप पूछेंगे तो देख लेंगे सर। नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स मैंने बताया है, उसमें बताया है एक रैम फंक्शन है जिसको टी यू टी लिखते हैं, उसको आर टी लिखते हैं हम लोग। रैम, आर टी मीन्स रैम। Now if I shift this ut plus alpha ut plus beta, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसमें? आरटी के फॉर्म में, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं। ये टी प्लस अल्फा है, ये टी प्लस बीटा है, तो फाइनल आंसर होगा आर टी प्लस अल्फा प्लस बीटा। और जो आपका वेवफॉर्म या इसका जो आंसर होगा, जो कर्व होगा, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज लाइक दिस। रैम्प स्टार्ट होता है 0 से, यहां से, और ये आर टी प्लस अल्फा प्लस बीटा है, दैट मीन्स it is a shifted version on the negative direction, and that is starting from minus alpha plus beta. अगर यहां पर सपोज करो मैं लिख दूं t माइनस अल्फा और t माइनस बीटा, तब आंसर क्या होगा? तो सर वो अल्फा और बीटा से शुरू हो जाएगा, रैंप फंक्शन इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अल्फा प्लस बीटा। एग्रीड है सारे लोग? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट मेरे पास अगर है यू टी प्लस टू कन्वॉल्व विथ यू टी माइनस टू, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, चाहे वो गेट हो, चाहे आईईएस हो, या दूसरे पीएसयूज के जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यू टी प्लस टू कन्वॉल्व विथ यू टी माइनस टू, क्या आंसर आएगा? प्लस टू माइनस टू इज जीरो, सो इट्स आर टी। आर टी, आर टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिंपली टी यू टी। टी यू टी। ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके बताइए जरा। सारे लोग ड्रॉ कीजिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, एक्स टी इज इक्वल्स टू 1 between minus a and a. xt equals to 1 between minus a and a. ठीक है, and ht equals to 1 between minus a and a, यानी दोनों फंक्शन सेम है, xt and ht both are same, and this is simply a pulse starting from minus a and reaching up to a, and the magnitude of the pulse is 1. Find out the convolution of xt and ht. क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्या है? किसी को डाउट है तो भी पूछो। हेलो? नो डाउट सर। Okay, सर fine. वन क्वेश्चन, xt इज 1 और 1 ut? नहीं, 1 Okay, ut नहीं, it is simply a pulse lying between minus a to a, small a, माइनस a से a के बीच में एक पल्स है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, दैट्स ऑल। एंड xt एंड ht वो सेम, दोनों सेम है। सर आंसर तो 2a आ रहा है, फ्रॉम माइनस a टू a। 2 आ रहा है आंसर फाइनल? यस सर, मतलब मेरा 2a आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इसका मतलब तुमने पूरा एक्सरसाइज नहीं किया। आई Maybe थॉट sir. तुम्हारा आंसर आना चाहिए था, बट और लोग ट्राई करो जरा इसको। ओके, गलती से गलत है सर, गलत। कोई बात नहीं, यू ट्राई।
सर 2a माइनस टी। 2a माइनस टी। चलो एक कुछ थोड़ा ठीक आया बट अभी भी नहीं आंसर सर, नहीं आया। सर कंडीशन भी है। अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं तो आप लोग शायद कर लेंगे। जो पहले वाली इम्पल्स है, जो पल्स है सॉरी, उसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो? किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो? समझे नहीं सर। एक्स ऑफ टी को मैथमेटिकली लिखोगे ना, कुछ किसी के फॉर्म में तो लिखोगे। इम्पल्स के फॉर्म में, यूनिट स्टेप, रैंप, किसी के फॉर्म में तो लिखोगे उसको, फंक्शन को। सर यूनिट स्टेप के फंक्शन में लिख सकते हैं लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे? सर, ut माइनस ए माइनस ut प्लस ए। अच्छा, या उल्टा लिख रहे हो? ये उल्टा हो गया सर, ut प्लस ए माइनस ut माइनस ए। हाँ ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? जो इम्पल्स, जो पल्स मैंने बताई है उसको हम लोग लिख सकते हैं u ऑफ टी प्लस ए माइनस u ऑफ टी माइनस ए। इससे सारे लोग एग्री है या नहीं है? यस सर। यस। आप दो 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 आप यूनिट स्टेप ड्रॉ करो। एक यूनिट स्टेप ड्रॉ करो जो माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा यूनिट स्टेप ड्रॉ करो जो ए से स्टार्ट हो रहा है। और जो माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है उसमें ए से जो स्टार्ट हो रहा है उसको माइनस कर दो, तो सिंपली यू विल गेट द पल्स। आ जाएगा सभी का? यस सर। दैट मीन्स आपके पास जो फंक्शन है वो है u ऑफ t प्लस ए माइनस u ऑफ t माइनस ए। ये आपका एक फंक्शन आ गया x ऑफ t। इस पूरे के पूरे फंक्शन को किसके साथ कन्वॉल्व करना है आपको? इसी के साथ। इसी के साथ, यानी u ऑफ t प्लस ए माइनस u ऑफ t माइनस ए। तो कन्वोल्यूशन के बाद पहले फंक्शन में दो टर्म है, दूसरे फंक्शन में भी दो टर्म है। सो आफ्टर द कन्वोल्यूशन हाउ मेनी टर्म्स यू विल हैव? 4। 4। लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी कन्वॉल्व विद c माइनस डी। तो आप क्या लिखेंगे? पहला आएगा आपका a कन्वोल्यूशन विद b, दूसरा आएगा माइनस a कन्वोल्यूशन विद d, तीसरा आएगा माइनस b कन्वोल्यूशन विद c, चौथा आएगा प्लस c कन्वोल्यूशन विद d। एम आई राइट? यस सर। बाकी सारी कंडीशंस मैंने ऊपर आपको बताई हुई हैं कि अगर u2 को u2 के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। तो अब मुझे फाइनल आंसर बता दीजिए सारे लोग चुपचाप से। बिना किसी सर 2a माइनस टी फॉर t लेस देन 2a एंड 0 अदरवाइज। आप तो पूरा बताओ एक बार में क्या आएगा। पहला कन्वोल्यूशन किसके साथ आएगा? फर्स्ट आएगा टर्म जो आएगी यू टी प्लस ए कन्वॉल्व विथ यू टी प्लस ए। आ रहा है ये? हेलो, ut माइनस टाउ प्लस ए के साथ होगा ना? मैं डायरेक्ट कन्वोल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूं, टाउ अभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो पहला कन्वोल्यूशन जो आएगा, फर्स्ट में दो टर्म है ना आपके पास, यू टी प्लस ए माइनस यू टी माइनस ए है, यस सर। कन्वॉल्व विथ यू टी प्लस ए माइनस। तो मैं बोल रहा हूँ यू टी प्लस ए कन्वॉल्व विथ यू टी प्लस ए, नहीं आएगा पहला टर्म? इट विल बी r ऑफ t प्लस 2a। यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ऊपर आप देखो ये लिखा हुआ है आपके पास यू टी प्लस अल्फा कन्वॉल्व विथ यू टी प्लस बीटा, दैट विल गिव यू आर टी प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह ए है, तो क्या आ जाएगा? यू ऑफ सॉरी आर ऑफ टी प्लस टू ए। तो ये आर ऑफ टी प्लस टू ए आ गया एक फंक्शन। यस सर। अग्रीड है? यस सर। चलो दूसरा क्या आएगा इसमें? प्लस r ऑफ t माइनस 2a। प्लस आर ऑफ टी माइनस टू ए। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। फिर क्या आएगा? 0। क्यों आई मीन जीरो आएगा? r ऑफ t विल बी देयर, बट सर एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा ना? नहीं नहीं, करके देखो ना उसको। सर -2 r ऑफ t। वेरी या नाइस। दोनों माइनस होंगे। आ रहे हैं दोनों माइनस। यस सर। तो ओवरऑल फंक्शन को हमने क्या लिख दिया है? आर ऑफ टी प्लस टू ए माइनस टू आर टी प्लस आर ऑफ टी माइनस टू ए।
ये सभी को समझ में आ रही है लाइन? किसी Yes, को sir. डाउट हो तो अभी पूछ लो। द सेम थिंग आई डिड ओवर हियर। देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है, आगे आप नोट्स में देख सकते हैं। u of t plus a minus u of t minus a convolve with u of t plus a minus this। पहले को t plus a को t plus a से करेंगे कन्वोल्यूशन तो t plus 2a आ जाएगा। t plus a को t minus a के साथ करेंगे तो माइनस आर टी आ जाएगा। इसको भी करेंगे तो माइनस आर टी आ जाएगा, जो माइनस 2 आर टी हो जाएगा। और ये ठीक है। अब हमारे पास क्या चैलेंज है, हाउ टू ड्रॉ दिस। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करना है मुझे। आर टी प्लस 2a को माइनस 2 आर टी को प्लस आर ऑफ टी माइनस 2a को, हाउ टू ड्रॉ। कितने लोग ड्रॉ करके बता देंगे? हालांकि Sir, मैंने इसको ड्रॉ ऊपर T किया और हुआ। UT के टर्म में कर दें। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ड्रॉ करके बताना है हाउ इट लुक्स लाइक। किया किसी ने? सर इंडिविजुअल तो ड्रॉ हो रहे हैं, बाकी इनका इंडिविजुअल, अच्छा चलो इंडिविजुअल से डिस्कस करते हैं, वहीं से निकल के आएगा आंसर। इंडिविजुअल में सर, आर टी प्लस 2a ड्रॉ करूं तो कहां से स्टार्ट होगा? सर ये -2a से शुरू होगा x की वैल्यू माइनस 2a से और कहां रैंप तक जाएगा। जाएगा? ये रैंप होगा जो माइनस 2a से स्टार्ट होगा एंड इंफिनिटी। इट विल लीडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, यस सर। ओके। अगर मैं इसमें से माइनस आर टी कर दूं तब कैसा हो जाएगा ये? सर तब तो ये एक लाइक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा शायद। कंप्लीट ट्रायंगल कैसे बन जाएगा अभी? सर अब सर आर टी 0 से शुरू होगा और नेगेटिव में जाएगा, कुल मिला के माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, बट तो एक आप ट्रायंगल की एक तरह बन जाएगा। दूसरे से माइनस कर रहे हो ना। यस सर। चलो इसको मैं एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस। लुक एट दिस फिगर। सपोज करो मेरे पास एक सिग्नल है जो आर टी प्लस 2a लिखा है, क्या उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो t प्लस 2a है? यस सर, उसका मीनिंग यही है। यही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जीरो t लेस देन 0 के लिए, t लेस देन 0 के लिए क्या है वो? अगर हम 0 से 2a के बीच में देखें, ठीक है। और दूसरा एक फंक्शन है हमारे पास आर टी को मैं t लिख सकता हूं। यस सर। तो अगर मैं t प्लस 2a में से t को माइनस कर रहा हूं तो हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 2a। हाँ, क्या बचेगा? ओनली 2a। ओनली 2a, ठीक है। तो 2a बचेगा, तो 2a हमारे पास किस तरह से होगा? 2a का मतलब क्या हुआ? एक कांस्टेंट लाइन। यस सर। क्यों भाई, एक कांस्टेंट लाइन होगी या नहीं होगी? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले को लिख रहा हूं आर टी प्लस 2a माइनस आर टी, तो इसको ड्रॉ करके कितने लोग बता सकते हैं?
RT plus 2A minus. 2a minus RT. Okay, so sir, it will be a straight line. Magnitude नहीं, 2A. कहाँ से स्टार्ट होगा? पूरा फंक्शन बताइए, ओवरऑल क्या क्या होगा ये? Sir, it will start from 0 to go 0. नहीं, to 0 से 2A. क्यों स्टार्ट होगा? सर plus 2a नेगेटिव 2a कहाँ से स्टार्ट होगा। नेगेटिव 2a से स्टार्ट होके कहाँ तक आएगा पहले वो? सर पहले x इक्वल टू t इक्वल टू 0 तक आएगा। इक्वल्स टू 0 तक आएगा और उसके बाद तो क्या फिर हो उसके जाएगा बाद वो? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज सर वो t प्लस Straight line. 2a माइनस t हो जाएगा, तो 2a पे ये स्ट्रेट कुछ लाइन इस तरह बनेगी। से दिखेगा क्या? ये देखो, ये जो जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहां देखो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा क्या? हाँ यस सर। ये -2a से स्टार्ट होके फ्री हो जाएगा। इसमें मैंने किन दो सिग्नल्स को ऐड किया है? एक तो RT प्लस 2a और दूसरे को -RT। ठीक है, तो RT प्लस 2a मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, उसके जस्ट बैक साइड में जहां मेरा कर्सर है, ये हो गया RT प्लस 2a और -RT मतलब माइनस स्लोप के साथ ये। इफ यू ऐड दीज टू यू विल गेट दिस। एग्री है इन सभी से? अगर डाउट हो तो अभी पूछना है। T प्लस 2a एक रैंप होगा जो -2a से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो लाइक दिस। -t यानी RT एक रैंप होगा जो इस तरह जाएगा। इफ यू ऐड दीज टू मैथमेटिकली यू विल गेट दिस। यस, Okay, now I got it, sir. I thought, sir, that RT will go from minus infinity to 0, but it should go from 0 to infinity, obviously. माइनस इंफिनिटी से कहां से स्टार्ट होगा? वो तो 0 से स्टार्ट होगा ना, I thought by mistake, I thought, sir. बिकॉज इट्स RT मींस TUT, Yes, राइट? sir. Because of UT, it will go ये from 0 to infinity. ये हमारे पास एक चीज आ गई है। क्या आ गया है? RT प्लस 2a माइनस RT। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस? RT minus 2A minus RT. RT माइनस 2a माइनस RT, तो माइनस RT मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? और RT माइनस 2a कहां से स्टार्ट होगा? RT minus 2, it will start from 2A and will go to 2a, infinity. राइट? अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? एडिशन दिख रहा है सामने। यस सर। एक रैंप स्टार्ट होगा आपका 0 से, कहां तक आएगा? -2a तक, और उसके बाद वो फ्लैट लाइन हो जाएगी, ठीक है? क्यों भाई? हाँ यस सर। यस सर। अब इन दोनों को फाइनली मुझे ऐड करना है। यही दो सिग्नल्स तो मुझे ऐड करने हैं, एक ये वाला वेव फॉर्म जो ऊपर दिख रहा है और एक ही नीचे दिख रहा है, ठीक? तो हम लोग -2a से स्टार्ट करते हैं। -2a से 0 के बीच में सेकंड सिग्नल में कुछ है क्या? Yes, sir. Sorry, no, no. नहीं, कहाँ है? No, कुछ भी नहीं नहीं है है। sir. तो -2a से 0 तक एज इट इज आ गया। ये नीचे देखो, सबसे लास्ट फिगर जो मैं दिख रहा हूँ, -2a से 0 तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है? फिर अब देखेंगे आप 0 से लेके -2a तक सेकंड वाले में एक है और फर्स्ट वाले में वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्या है? फर्स्ट वाले में कांस्टेंट वाले 2A है. 2a है और सेकंड वाले में वो सिर्फ एक रैंप है -t का, है? Yes. तो अगर इनको ऐड करेंगे तो t - 2a जैसा कुछ नहीं आएगा क्या हमारे पास? 2A minus T जैसा आएगा. हाँ, 2a - t जैसा आएगा। Yes, sir. तो 2a - t को जब आप ड्रॉ करेंगे, सो ये आपकी फिर से क्या आ जाएगी? A straight line. एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कहां तक जाएगी? 2a तक। 2A एंड तक. आफ्टर 2a आप देख रहे होंगे फर्स्ट फंक्शन में तो प्लस का 2a है और सेकंड में किसका है? माइनस माइनस। का 2A. तो दोनों मिलके क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल Zero. आउट कर देंगे। So finally your answer will be a triangle starting from -2a, the highest magnitude at t equals to 0 and reaching up to 2a.
ये इसका आंसर है। कितने लोग इससे एग्री हैं? अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज की क्लास में यही होगा। नो डाउट सर। किसी को अगर डाउट हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली भी मैंने दिखा दिया आपको बना के और बाकी चीजें बता दी। सभी लोग एग्री हैं इससे? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भरत, यू डू वन थिंग, जो आज एक कंफ्यूजन था एक मैथमेटिकल इक्वेशन में, यस सर। उसको थोड़ा नेट पे तुम सर्च करना, मैं भी आज रात में बैठूंगा कि हाउ वी कैन राइट करेक्टली, ठीक है? क्योंकि यस थोड़ा सा यहाँ इक्वल टू और लेस देन में कंफ्यूजन है मुझे भी, है ना? ओके सर। अदरवाइज थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, वो तो सही है, बट हाउ विल राइट मैथमेटिकली, दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तुम देखना इसको, मैं भी देखूंगा, ठीक है? यस चलो फिर मैं आज यही क्लोज कर रहा हूँ इसको, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। कल भी मैं ऑनलाइन लूंगा, उसके बाद फिर मेरा लैपटॉप का जरा कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं, फिर शुरू करेंगे। वैसे आज तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था जो ऑफलाइन क्लास थी उसमें? एक्चुअली सर सिर्फ लैब ही हुई है ऑफलाइन हमारे लिए, तो EC2 के लिए। अच्छा, नहीं, EC1 जो था ऑनलाइन, क्या एक्सपीरियंस था, कौन बताएगा? हेलो, एनीवन फ्रॉम EC1? कोई नहीं है? जी सर। सर अलग ही वाइब आती है क्लास की, और ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे हमारी नहीं, एनएमएसटी की क्लास थी तो मतलब फीलिंग आ रही थी कि कॉलेज में क्लास जाकर। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अच्छी बात है। मैं भी क्लास, आई लव टीचिंग इन क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 घंटे आज अपना लैपटॉप, एक्चुअली हम लोग के पास जो सिस्टम्स हैं थोड़े पुराने हैं, मतलब 5-6 साल पुराने हैं। कभी ट्राई तो किया नहीं उनसे कि प्रोजेक्टर पर चलेगा नहीं चलेगा। आज जब ट्राई करने गए तो उसका कुछ ड्राइवर का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या, क्योंकि सिस्टम बहुत जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे खुद ही क्लास में जाना है। मैं आज पूरा दोपहर में लगा रहा, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट। एनीवे, मैं सैटरडे संडे को कुछ मैनेज करता हूँ, सो दैट आई कैन स्टार्ट योर ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सर ओके? पहले जो क्लासेस होती थी उसमें आप प्रोजेक्टर्स यूज नहीं करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं किया यार, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैंने, आई हैव नेवर यूज माय लैपटॉप एंड ऑल दैट। मैं, आई लव टीचिंग ऑन ब्लैक बोर्ड यूजिंग चॉक। सर हमारे यहाँ तो इसलिए ग्रीन मेरे बोर्ड पास होंगे। हाँ, ग्रीन बोर्ड है, जो भी है, बोला ब्लैक बोर्ड ही जाता है। ओके देन, थैंक यू ओके ऑल। सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।